بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمپیوٹر فار کلاس 9th لیکچر نمبر 18. اسٹوڈنٹ لاسٹ کلاس میں ہم نے بات کی تھی گڈ امپیکٹ آف انٹرنیٹ آن سوسائٹی، اور آج ہم بات کریں گے بیڈ امپیکٹ آف انٹرنیٹ آن سوسائٹی. اینڈ دیکھتے ہیں کیا کیا برے اثرات معاشرے پہ اس کے مرتب ہو رہے ہیں. اسٹوڈنٹ اس کو آپ نگیٹو اسپیکٹس بھی شمار کر سکتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی شمار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. Following are some of the negative aspects. Number 1, there is so much illegal and inappropriate information available on the internet without any restrictions. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے انٹرنیٹ پہ. میں اور آپ، کوئی بھی اور بندہ، نہ سمجھدار سارے لوگ جو ہیں انفارمیشن کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اللیگل انفارمیشن بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور انکمپلیٹ انفارمیشن، ان اپروپریٹ، غیر ضروری انفارمیشن، اور سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ غلط انفارمیشن کہہ لیں کہ جو اتھینٹک نہ ہو. ان اتھینٹک انفارمیشن از آلسو اویلیبل آن دا انٹرنیٹ. کوئی اس کی تصدیق نہیں ہے اور وہ اویلیبل ہے، اور دیکھنے والے اس سے دیکھ کے مختلف میننگز نکال رہے ہوتے ہیں جو کہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ون آف دا میجر ڈس ایڈوانٹیج ہے جو کہ انٹرنیٹ کا ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو اتھینٹک سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اس انفارمیشن میں بہت کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں، اور کسی بھی ایک نہ سمجھ بندے نے اس کو اپلوڈ کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک محتاط رہنے والی چیز ہے. اس طریقے سے نمبر 2، ایون چلڈرن کین گیٹ ایکسیس ٹو میچیور اینڈ بلڈ ریلیٹڈ گیمس. اڈلٹ مٹیریل اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ، اور ایسے گیمز موجود ہیں جس میں خون بہایا جا رہا ہے یا اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور وہ اڈلٹ مٹیریل جو کہ ایک امیچیور بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے وہ اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ. گالی گلوچ سے ریلیٹڈ چیزیں، خاندانی جھگڑوں سے ریلیٹڈ چیزیں، غیر اخلاقی انفارمیشن، یہ سب چیزیں جو اسٹف موجود ہے وہ ناٹ سوٹیبل فار چلڈرن ایج ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے معاشرے کی جو اخلاقی روایات ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، مورل ویلیوز متاثر ہو رہی ہیں. تو یہ ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے کہ ہر ایج گروپ کا جو انسان ہے وہ ان انفارمیشن کو ایزیلی ایکسیس کر سکتا ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. نمبر 3 از انٹرنیٹ از بیکمنگ اے پلیٹ فارم ٹو شیئر کاپی رائٹڈ اور انلیگل مٹیریل. کاپی رائٹ اسٹوڈنٹ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی محنت ہے، کسی کا کام ہے، اور اس نے اس کو کاپی رائٹ کرایا ہوا ہے کہ اس کی شیئرنگ، اس کی ڈپلیکیٹ بنانا وہ انلیگل ہے. لیکن ود دا ہیلپ آف انٹرنیٹ اینڈ کمپیوٹر اس انفارمیشن کو لوگ جو ہیں ذرا تھوڑا بہت آلٹر کر کے اور اس کو ری یوز کر لیتے ہیں، اپنے نام سے پبلش کرتے ہیں، اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ اونر تک پہنچنے کے بجائے جو ہیں وہ کرمنل مائنڈ پیپلز تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو کاپی رائٹڈ اور انلیگل مٹیریل کا شیئر ہو جانا، کوئی میوزک، ویڈیو اور ادر ڈاکومنٹس کے لیں، کوئی ساؤنڈ فائلز وغیرہ ہیں، یہ سب چیزیں، کوئی اور ڈاکومنٹس ہیں، کسی کا ریسرچ مٹیریل ہے، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ انلیگلی کاپی رائٹڈ قانون کے خلاف جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. تو دس از آلسو ون آف دا پرابلم آف دی انٹرنیٹ. نمبر 4، کمپیوٹر وائرسز اسپریڈ ہو رہے ہیں وائر انٹرنیٹ. جب آپ مختلف قسم کی ان نون ریسورسز سے کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس فائل کی ڈاؤن لوڈنگ میں آپ کو آتھر نیم نہیں پتہ ہوتا ہے یا وہ ان نون آتھر ہوتا ہے، اس صورت میں آپ کا سسٹم متاثر ہو سکتا ہے مختلف قسم کے وائرسز سے، لائک ٹروجنس، وورمز، ٹھیک ہے، ٹائم بامز وغیرہ سے متاثر ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے کے ڈفرینٹ سیورل کرائمز جو ہیں وہ بھی ممکن ہو گئے ہیں ود دا ہیلپ آف انٹرنیٹ. فائنینشیل کرائمز آر آلسو گروئنگ. آپ کے مختلف جو کریڈٹ کارڈز ہیں ان تک ایکسیس حاصل کر لیا جاتا ہے، ان کے پاس ورڈز کو ہیک کر لیا جاتا ہے، آپ کے اکاؤنٹس انفارمیشن کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے. تو ان سب کے اندر جو ہے آپ جب تک
सिक्योरिटी सिस्टम को अपने स्ट्रॉन्ग नहीं करते हो तो इस तरह की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर गैर महफूज भी हो सकती है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है कि आपका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, तभी आप इसके बैड इम्पैक्ट से बच सकते हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स के हवाले से इंटरनेट ने माशरे के ऊपर एक बुरे असरात मुरतब किए हैं। फ्रीडम ऑफ यूज़ ऑफ इंटरनेट की बात अगर करें तो किसी भी वक्त कोई भी बंदा जो है वो क्योंकि आज़ाद है इंटरनेट के यूज़ में, तो वो बहुत क्राइम करने के हवाले से बहुत एक यूँ समझ ले ल्यूरिंग हो गया है, लालची हो गया है, और इस तरीके से हेनेस घिनौने किस्म के जो है क्राइम भी है वो इंटरनेट के ज़रिए परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, पीपल कैन स्पेंड अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, टाइम की कोई कैद नहीं है, यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, और अट्रैक्टिव चीज़ें मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा वसी ख़जाना मौजूद है। अब वो ऑथेंटिक है अनऑथेंटिक है, जो भी है पेश करने वाला उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहा है। तो ऐसे में बग़ैर बोर हुए या बग़ैर कोई हार्ड फीलिंग्स के आप इंटरनेट पे एक बहुत ज़्यादा टाइम स्पेयर करते हो, जो कि नुकसानदेह है, आपके सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसानदेह है। आप जब एक ही जगह पे मुस्तकिल बैठे बैठे और नज़रें स्क्रीन के ऊपर रखते हैं तो आप के हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो आ जाते हैं। तो इस हवाले से भी मोहतात होने की ज़रूरत है कि आप जो है इंटरनेट सर्फिंग अगर करते भी हैं, साथ ही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के इनके क्या मुमकिन हल हो सकता है। तो आपको उसूलन जो है इंटरनेट से जहाँ फ़ायदा उठाना है वहाँ इसके इस इशू से बचने के लिए आपको अपने टाइम को थोड़ा सा शेड्यूल करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए। अगर आपने फ़ायदा उठाना ही है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। इस सूरत में जो है आप अपनी सेहत को मुतासर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट। नंबर 8 स्टूडेंट्स, recent trend shows that publishing the पर्सनल लाइफ, पब्लिसाइजिंग की जा रही है पर्सनल लाइफ की और इंफॉर्मेशन इन सोशल नेटवर्क वेबसाइट, ये बहुत बढ़ता जा रहा है। आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल लाइफ है, उसको फोकस किया जा रहा है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है और वो उस तक एक्सेस हासिल कर लिया जाता है इंटरनेट के ज़रिए। तो ये एक नामुनासिब चीज़ है। इसके अलावा वर्चुअल ऑनलाइन वर्ल्ड आपके सामने रियल वर्ल्ड की हैसियत से पेश की जा रही है। वर्चुअल ऑनलाइन यूँ समझ ले गैर हकीकी दुनिया, गैर हकीकी दुनिया को हकीकी दुनिया के तौर पे पेश किया जा रहा है। रियल वर्ल्ड हकीकी दुनिया के अपने फ़ायदे हैं, अपने बेनिफिट्स हैं, जबकि जितना ज़्यादा आप गैर हकीकी दुनिया की तरफ बढ़ेंगे, आर्टिफिशियल सिस्टम के तहत आप वर्किंग करेंगे, जैसे हमने गुड इम्पैक्ट्स में जाना था ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के हवाले से, तो जहाँ उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं वहाँ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। रियल में आप जब चीज़ परचेज करते हो तो उसके बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उसके कलर्स हैं, उसकी मैचिंग्स हैं, उनको देख रहे होते हो, उसकी बनावट को देख रहे होते हो। लेकिन वर्चुअल ऑनलाइन शॉपिंग या वर्ल्ड के अंदर जब आप ये शॉपिंग कर रहे होते हैं तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं आपके सामने अननोन होते हैं, और आफ्टर परचेजिंग दैट प्रोडक्ट फिर आपको जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसकी जो कमी बेशी है वो महसूस होती है। तो वर्चुअल ऑनलाइन वर्ल्ड को एज ए रियल वर्ल्ड पेश करना ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंटरनेट की दुनिया के अंदर। अच्छा, लास्ट वन इज़ द स्टूडेंट, रिसेंट मेडिकल स्टडीज़ की अगर हम बात करें, जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि जो इंटरनेट का एडिक्शन है, ये जो इंटरनेट का एक जुनून सवार हो गया है और लत लग गई है, इस कॉजिंग पर्सनल, प्रोफेशनल एज वेल एज सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप जो हो जब मुस्तकिल बैठे हुए हो इंटरनेट पे, तो इसके ज़रिए आप इमोशनल ब्लैकमेल भी हो रहे होते हो, आपकी आपकी पर्सनालिटी मुतासर हो रही होती है, आपका प्रोफेशनलिज्म भी मुतासर हो रहा होता है। ठीक है, और आप मिसयूज़ हो जाते हो। ठीक है, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग मसाइल होते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द बैड इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी। स्टूडेंट्स, अगर हम कंक्लूड करें अपनी बात को,
लास्ट वीडियो में गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट इधर हमने डिस्कस किए। तो हर चीज़ के देखे जाए दुनिया में अच्छे और बुरे जो हैं असरात होते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके गुड एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये गुड और नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं हमारे आपके यूज़ से पैदा होते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को उसके पॉजिटिव यूज़ के साथ अगर इस्तेमाल करें और मैनेज करें तो फिर वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे काबू पाया जा सकता है। या कभी कभी जो है गुड एस्पेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि छोटे मोटे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उनको इग्नोर भी किया जा सकता है। तो खुलासा ये है कि हमारा यूज़ किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को नुमाया करता है। अगर आप इसी इंटरनेट की फैसिलिटी को पॉजिटिव एस्पेक्ट से अपने पॉजिटिव वर्किंग के अंदर यूटिलाइज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसके नेगेटिव एस्पेक्ट से बच जाएंगे, वरना नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो हमारे पर्सनल लाइफ के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, हमारी जनरेशन के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, यूथ के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। ठीक है, तो इन नेगेटिव एस्पेक्ट्स को अपने जहन में रखते हुए, इनसे बचते हुए, इनके हवाले से रेमेडीज़, इनके हवाले से जो है एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए अगर आप अपने इंटरनेट को यूज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप फ़ायदा उठा सकेंगे इससे। अदरवाइज़ ये काफ़ी काबिल नुकसान हो सकता है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।